Good morning, student. Hello, good morning, student. स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। बच्चे बोल दिया करो भाई। स्क्रीन शेयर है यस सर। तो देखो लास्ट टाइम पे वी हैव डिस्कस अबाउट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, इन दिस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग व्हाट वी डू, we set the priority of each process. Okay, so each process have its priority. So the highest priority, so in priority scheduling the highest priority will be executing first. Okay, and the lowest priority will be executing last. Okay, so just okay, so the solution of all type of scheduling is that you have to check the bus time and the arrival time, and according to bus time, arrival time, and which type of scheduling you are going to do, according to that you have to prepare a Gantt chart. According to Gantt chart you have to find out the waiting time of each process and turnaround time of each process, and you have to find, ultimately you have to find the average waiting time and average turnaround time. Okay, so in priority scheduling I have discussed, and uh, I have told you that uh, there is some advantage disadvantages of priority scheduling, and the disadvantage is that starvation. Okay, so it may possible that uh, if the process which are entering into the system continuously have a highest priority, so it may chance that lowest priority will never get the chance. Okay, so it may go into the starvation. Okay, starvation मतलब है कि जैसे भूखमरी हो गया ना, खाना आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या होगा, भूखे मर जाओगे। ठीक, clear है? तो this is called such type of starvation. So if a process is not doing anything and it is just waiting for uh, processor, so it is called starvation problem. Okay, so lower priority processes may never execute. So for the solution for starvation is that after completing one process, the priority of each process is increased by one. So or you can say that at every completion of each process, the priority of uh, each process increase. Okay, by one. It depends on you. You are increasing by one or two or three. Okay, so it means that as you know that priority is nothing. It's a number, and the lowest number shows the highest priority. Okay, clear? So this is called aging technique. So so ultimately the lowest priority by increment on each class cycle, it may sometime after some time it may become highest priority. Yes. So this is the solution for starvation problem which occurred in priority scheduling. Now come to round robin scheduling. In round robin scheduling, as it shows, its name shows round robin, means that it's a such type of circular type of things are there. Okay, and please note it that round robin is by default preemptive algorithm. Okay, it's by default preemptive algorithm, and all other algorithm are preemptive or non-preemptive. It may be preemptive, it may not be preemptive. Okay, so but round robin scheduling is by default preemptive scheduling. Okay, so in round robin scheduling, the CPU is shifted to next process
for a fixed interval of time. Okay, for a fixed interval of after each fixed interval of time, processor shifted to next process. Okay, so so definitely you have to specify, or you have to set the time quantum, or you have to set the time for the time by which the CPU shift from one process to another process. Okay, so you have to fix the time, or you have to set the time, and this time is called quantum or time slice. Okay, this is called quantum or time slice. So as I have told you that the process that is uh, preempted is added to the end of queue. So अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होता है ये चीज। जैसे क्या है ना कि देखो ये है हमारा, और ये किस पे होता है बाय डिफॉल्ट, ये प्रिएम्प्टिव है, और ये एफसीएफएस होता है। ठीक, तो जैसे P1 P2 P3 प्रोसेस आर देयर, तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है, ये P3 एग्जीक्यूट हुआ, ये P4 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, in the system there are four processes are there. Okay, so P1 will be executed for a set interval of time, then processor shifted to P2 and it will execute for set interval of time, then it's shifted to P3, then it's shifted to 4. And I have told you there are only four process. So now, and P1 is left to execute, so P1 will be added to next queue. Okay, end of the queue, or added to end of the queue. Okay, so P1 will be shifted here, then P2, then P3 and so on. Okay, अब देखो क्या है कि यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर बाय चांस, अगर क्या है, कोई एक प्रोसेस है, देर आर फोर प्रोसेस एंड P1 अराइव and P3 arrive, but P4 is not arrived. So what you have to do, you have to wait until unless P2 is arrived. Okay, so in this condition P1 will be moved to end of the queue. Okay, तो P1 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद P3 एग्जीक्यूट हो गया। Now P2 is arrived, now P2 will be executed. Okay, so you have to see it, if arrival time is given, so you have to see it that whether the process is entered into the system or not. If it is entered into the system, then you have to execute the processes according to the their first time, and uh, according to the round robin schedule. Okay, clear? But if it is not arrived into the system, then the process which is executed and it is left, so it will be shifted there. Okay, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अराइवल टाइम भी चेक करते रहना। क्लियर है? राउंड रॉबिन इज ए हाइब्रिड मॉडल विच इज क्लॉक ड्रिवन। हमने आपको बता दिया इससे क्लॉक ड्रिवन है, और क्या होगा, एफसीएफएस है, प्लस इसमें क्लॉक का यूज करते हैं, एंड आफ्टर ईच fixed interval of time, processor automatically shifted to next process. So definitely time slide should be minimum, and it is depend upon OS to OS. Okay, it is depend upon OS to OS, and it may be differ from OS to OS. Okay, so it may be 2, it may be 4, it may be 6. कि मतलब क्या है कि after 6 minutes or 6 seconds, processor will shift to next process. Okay, and after executing for 6 seconds, the processor again shifted to next processor, and so on. So it depend upon OS to OS पे depend करता है, ठीक है? It is real time algorithm which responds to the event within a specific time limit. I have told you. Round robin is one of the oldest and fairest algorithm, widely used scheduling algorithm method in traditional way. क्लियर है? अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं।
So let's take an example. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है कि there are three processor P1 process, sorry, P1, P2, P3, and their burst time is given, and it is it is 4, it is 3, and it is 5. Okay, so as I have told you that round robin scheduling uses the FCFS algorithm, but it is a by default preemptive algorithm, and it will uh, switch to another process by a fixed interval of time. Okay, and here the fixed interval of time is given 2. Okay, this is called quantum and time slice. तो ये देख लेना राउंड रॉबिन में ये चीज गिवन है. सम टाइम क्या होता है कि इट इज नॉट सम टाइम इट इज आस्क्ड दैट टू फाइंड द एवरेज टाइम. ओके, बट इट इज नॉट saying कि which method you have to use. Okay, so but the term quantum is given. So by seeing time quantum you will easily understand that what algorithm you have to. क्लियर है कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है. सम टाइम इट इज नॉट गिवन, लेकिन क्या है कि अगर आप टाइम क्वांटम देख लोगे कि क्या टाइम क्वांटम दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ही करना है. तो अब देखो क्या है, इट्स वेरी सिंपल. अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले P1 आएगा एंड एज द टाइम स्लाइस इज 2. ठीक, तो क्या होगा, P1 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 2 सेकंड and automatically the processor will shift it to P2 and it will execute it by 2 seconds, and it will shift it to P3 and it will execute it P3 for 6 seconds, for 2 seconds. Okay, now P1 is left to execute, P2 is left to execute, and P3 is left to execute. Means 2 seconds is left, 1 second is left, and 3 seconds is left. Okay, so P1 will move to end of the queue and start execution. So it will again, processor will again execute it, and it will execute it for 2 seconds. Now P1 is complete. 2 seconds here and 2 seconds here, it means total 4. P2 will be executed. P2 only 1 second burst time is left. So here P2 will be executed for 1 second, then P3 will be executed, okay, and it will be executing for 2 seconds, and no other process are there, only P3 is there, so P3 will be executing, okay, continuously. But processor will shift, okay, processor will shift from P3 to P3. Clear? तो अब देखो क्या है कि अब P1 का जो वेटिंग टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टाइम इसका 8 है, ठीक, और बस टाइम कितना दिया है 4. तो वेटिंग टाइम 4 हमने आपको बता रखा है कि वेटिंग टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस इज स्टार्टिंग टाइम माइनस बस टाइम. ओके, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ बस ये होता है. P2 देखो 9 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, बस टाइम इसका 3 दिया है तो हो जाएगा 6. ठीक, P3 12 पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और इसका जो क्या कहते हैं बस टाइम है वो 5 है. तो क्लियर है. तो वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस बस टाइम. ठीक, क्लियर है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेटिंग टाइम इंडिविजुअल प्रोसेस का निकाल सकते हो. टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, P1 का 8, P2 का 9 और P3 का 12. एवरेज वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट कर लोगे, और क्या कहते हैं जो हमारा क्या है एवरेज टर्न अराउंड टाइम. नाउ कंप्लीट अनदर एग्जांपल. इसमें क्या है कि अराइवल टाइम इज गिवन.
तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस, देयर आर 6 प्रोसेस एंड अराइवल टाइम इज गिवन 0 1 2 3 4 5 6, बस टाइम इज गिवन। तो अब देखो क्या है, सिंपल सा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने वैसे बना दिया यहाँ पे कि देखो सबसे पहले P1, अच्छा टाइम क्वांटम इसमें नहीं लिखा है, टाइम क्वांटम 4, ठीक है, क्वांटम इज 4, ठीक है, तो ये 4 गिवन, ठीक, इसमें मेंशन करना भूल गया हूँ। तो टाइम टाइम क्वांटम इज 4। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, P1 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 4 सेकंड, ठीक, इसके बाद क्या होगा, P2 आ जाएगा, P2 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 4 सेकंड, ठीक, क्लियर है। अब देखो क्या है, इसमें क्या होगा कि देखो P1 P2 P3 P4 P5, ठीक, चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे देखो जब तक P5 एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक, क्लियर है, P5 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, तब तक क्या है कि अब देखो क्या है, P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P3 एग्जीक्यूट हुआ 4 सेकंड के लिए, फिर P4 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P5 एग्जीक्यूट हुआ। अब देखो क्या है यहाँ पे कि अभी, ठीक है, P5 आया, ठीक है, इस तरह से देखना, एक ये बनाए हैं, ठीक, P1 आया, ठीक, इसके बाद P2 आया, फिर P3 आया, फिर P4 आया, ठीक, P5 आया। अब देखना यहाँ पे एक चीज बस ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि अभी क्या है कि जो P1 P2 P3 P4 आया, ठीक है, अभी तक क्या है 4 सेकंड ही एग्जीक्यूशन मतलब अराइवल टाइम है P5 का, ठीक, क्लियर है। अब P6 का जो अराइवल टाइम है वो 6, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जब P5 तक आएगा प्रोसेसर, ठीक है, तब तक क्या है कि P6 इज नॉट अराइव, तो क्या होगा कि P5 के बाद हम लोग क्या करेंगे, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक? समझ में आएगा। तो अब देखो क्या है कि ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखो क्या है कि P5 यहाँ पे आया, ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें क्या करना है, P1 जब हमारा क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, सिस्टम में P3 इंटर कर दिया, ठीक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, P6 को 4 सेकंड के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखते जाओ यहाँ पे, जैसे P1 हमारा आया, ये हमारा क्या है कि एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये थोड़ा सा देख लेना तुम लोग कि अगर अराइवल टाइम इज गिवन, ठीक है, इफ अराइवल टाइम इज गिवन, तो हमें क्या करना है, ये देखते चलना है कि कौन सा अभी प्रोसेस अराइव हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, ठीक, क्लियर है। तो जैसे अब देखो क्या है कि P1 आया हमारा, P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 आया, P3 आया, P4 आया, P5 आया, ठीक, क्लियर है। अभी तक क्या है कि हमारा P6 अराइव नहीं हुआ, तो क्या होगा, फिर P1 हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये P1 हमारा 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ तुम्हारा, फिर P2 हमारा 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर P3, फिर P4 का बस टाइम सिर्फ 1 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकंड के लिए, जो ऐसे P5 पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब P5 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया, अभी P6 अराइव नहीं हुआ, तो P1 हो जाएगा, इसके बाद एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये देखो ये साइकिल कैसे बनी, ये समझ में आई कि नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया तो नहीं, किसी को ना समझ में आया तो पूछ लो, साइकिल कैसे बनी। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा देखो सर एक बार P1 फिर से आया, रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले P1 आया, ठीक, इसके बाद देखो क्या है, P1 आया, P1 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, P1 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि देखो कौन कौन से प्रोसेस एंटर हो चुके, 1 2 3
4 और 5। ठीक, P1 जब एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो क्या हुआ, सिर्फ P5 तक ही एंट्री हो पाई, अभी P6 नहीं हुआ क्योंकि 4 ही सेकंड कंप्लीट। तो अब देखो क्या हो गया, P2 जो साइकिल बनेगी, ये हम गैंट चार्ट में ना देखो, तो P1 आया सबसे पहले, 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद क्या होगा, P2 आ गया, तो रेडी क्यू में P2 की एंट्री हो गई। ठीक, फिर 8 सेकंड के लिए होगा। फिर P3 आ जाएगा, फिर P4 आ जाएगा, फिर P5 आ जाएगा। ठीक, रेडी क्यू में P5 तक की एंट्री हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या है कि जैसे P1, अब प्रोसेसर क्या करेगा, इट विल लेफ्ट P1 को लेफ्ट करेगा, तो वो P1 क्या होगा, रेडी क्यू में अगेन क्या होगा, चला जाएगा। किसके बाद जाएगा, P1 P2 P3 P4 इंटर कर चुके हैं, P5 के बाद आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ये जो है, ये देखते रहना कि रेडी क्यू में कैसी एंट्री हो रही है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, P1 आया सबसे पहले, P1 एग्जीक्यूट हुआ 4 सेकंड के लिए, P1 जैसे ही 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, P2 आ गया, फिर 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर P3 आ गया, P4 आ गया। 4 सेकंड के बाद जैसे ही स्विच करेगा P2 पे, ठीक है, तो P2 पे स्विच करने तक कितने प्रोसेस इंटर कर चुके हैं, पांचवा इंटर कर चुका है। ठीक, तो अब क्या होगा कि P1 अब रेडी क्यू में फिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है ना, तो प्रोसेसर जब लेफ्ट करेगा तो P1 को कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे, तो रेडी क्यू में जाएगा, तो P5 ही आ चुका है रेडी क्यू में। अब P5 के बाद P1 आ जाएगा। जैसे अब देखो क्या है, P2 जैसे ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा P5 P6 तक। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, 6 प्रोसेस भी इंटर कर जाएगा सिस्टम में। ठीक है, तो P1 के बाद P6 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा, सारे के सारे प्रोसेस इंटर करते जाए। अब जो जो क्या होगा, स्विच करते जाएंगे, वो रेडी क्यू में एंड में जो जहां तक एंट्री हो चुकी है उसके बाद वो इंटर होता है। तो क्लियर है ये चीज। ठीक है, डायरेक्टर सर आपको बुलाया। एक मिनट बच्चों रुकना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। ये करा। अच्छा एक चीज बच्चों, जरा एक चीज